So hello and namaskar students of class 9th and class 10th of artificial intelligence. I have already covered the part introduction to AI, then AI ethics, and then unit 2 AI project cycle. All those videos you will get in the I button and the description link as well. If you have any doubt regarding any concept, you can ask in comment section. From this video I am going to start Python, that practical part. It is given in your revised syllabus that Python should be revised. Python can be assessed in practicals only. So that practical parts we are going to start from this video. Although I have already uploaded video on Python ideally, how to write programs, what are the basic things you need, all the basic Python, that with Python ideally. But with this series, I am going to start Python concepts with Jupyter notebook, how to work with Anaconda Navigator, how to work with Anaconda environment, virtual environment, and how to write programs with Python Jupyter notebook, because it is most important tool for your class 10 curriculum. Because in class 10 curriculum we have to manage some library packages, we have to learn some data science related things where this Jupyter notebook is very important. So from this video I am going to start those concepts with Python Jupyter notebook. So in this video I am going to discuss only how to install Anaconda, then how to configure Python Jupyter notebook, and how to use them, and how to create virtual environment. Because when you install Anaconda, you will get only base environment. So there also you can run this Jupyter notebook and you can do the programs. It's your choice. But we have to create virtual environment. So that time we cannot use that base environment, because when we are using base environment and any program we are doing, any error is coming, then it is very difficult to solve, because Anaconda, Jupyter notebook, and these all are integrated with many library packages. So maybe you will get errors. Sometimes those errors you may not resolve very easily. So for that they have created one forum, one community, that also you have to register with that. So there you can post your comments. Experts will answer there, because this Anaconda and Jupyter notebook and all, they are having different types of libraries and all. So some types of work, or sometime you have to do such R&D for this purpose. So that we are going to start. The basic thing I will cover in this video, how to create virtual environment. So myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel TutorialAICSIP. And if you are coming to my channel first time, subscribe my channel, press the bell notification icon to get the relevant and practical, easy and comprehensive notes, as well as Q&A, important Q&A notes that I am posting in my description links. So go there and download it, or if it is not available, read from that website. And some of the playlist you will get in the description link. So go there, watch those videos, understand the concepts. If you have any doubt, you can ask me. I will give you answer. There also I will give you reply. And I am making Sunday comment box. There I am picking some questions. So your questions will be explained in detail in that video. So let's begin. So here I am on my computer screen, and here I have opened that PDF, how to configure Jupyter notebook, or how to create virtual environment, how to install Anaconda, what is Anaconda and Jupyter notebook. So that we are going to discuss in this video. So first of all, we have already covered AI domains, where you have seen that three major AI domains: data, NLP and CV. Data, natural language processing, and computer vision. So this requires packages needs to be installed. You can install them in ideally too, but it is very difficult to manage them. So in this article we will discuss about Anaconda and Jupyter notebook. तो यहाँ पे जैसे क्लियरली लिखा है कि डेटा, एनएलपी और सीवी, वो जो टॉपिक आपके क्लास 10th में भी कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड उसमें आएगा, तो उसमें हम कुछ लाइब्रेरीज और पैकेजेस देखेंगे. तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जुपाइटर नोटबुक के साथ काम करना और एनाकोंडा नेविगेटर के साथ काम करना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए. एनाकोंडा नेविगेटर इट इज ओनली फॉर रनिंग जुपाइटर नोटबुक. तो जुपाइटर के लिए ही हम एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज एनाकोंडा का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जुपाइटर नोटबुक उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, तो इसीलिए हम उसको इंस्टॉल करेंगे और उसी के ऊपर वर्क करेंगे.
तो चलिए देखते हैं पहले एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं. So the Anaconda distribution is the collection of certain packages that are used for data science, R language, machine learning and other platforms. It is one of the IDE software with integration of multiple platforms. तो बेसिकली एक IDE करके सॉफ्टवेयर होता है. IDE का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब ये है कि आपको जब कोई डेवलप एप्लीकेशन करनी है, या तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं आप, या तो किसी भी प्रकार का कोई भी गेम डेवलप करते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है. तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि कोड रहता है, तो उसका जो बेसिक एडिटर है वो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है. तो उसके साथ क्या किया है कि आईडी सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं जिसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है. इसके अलावा बहुत सारे पैकेजेस इंटीग्रेटेड होते हैं जो आपको एक्सटर्नली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती. कभी कभी ऑटोमेटिकली कुछ एक या दो स्टेप परफॉर्म करने से ऑटोमेटिकली उसी आईडी सॉफ्टवेयर में आप यूज कर पाते हैं. तो इसी के लिए आईडी सॉफ्टवेयर होता है. ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी के साथ आप सिर्फ मेथड को वहां लिखो, सिर्फ आप पहला लेटर लिखेंगे, बाकी सारे लेटर वहां पे खुल जाएंगे, ऐसा भी होता है. तो ऐसे आईडी सॉफ्टवेयर होते हैं. तो ये भी एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ दैट टाइप एप्लीकेशन. तो वो भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो सारे पैकेजेस उसमें हैं जिसमें आप डेटा साइंस, आर लैंग्वेज, मशीन लर्निंग के लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वर्क करेगा. तो ऐसे सारे पैकेजेस इसमें दिए जाते हैं. बिफोर डाउनलोडिंग चेक योर ओएस वर्जन whether it is 32-bit or 64-bit to download Anaconda. Follow this link. तो यहाँ पे मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पूरे पीडीएफ का लिंक. तो वहां जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, और ये कैसे करना है डाउनलोड एनाकोंडा वो भी आपको लिंक वहां से मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, उससे पहले आपको चेक करना है, और वो चेक करना है आपके ओएस का वर्जन कौन सा है, 32-bit या तो 64-bit. आप कैसे इसे करेंगे चेक? तो यहाँ आपके पास कंप्यूटर प्रॉपर्टीज होती है, उसमें आप चले जाइए, दिस पीसी प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर डेस्कटॉप पे होता है उसकी प्रॉपर्टी में जाइए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. तो उसी के हिसाब से आप डाउनलोड करिए. उसमें वो दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड बटन आएगा, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे. चलिए मैं दिखा देता हूँ ओपन करके. ये मैंने क्लिक कर दिया अलाउ. तो पीडीएफ से अभी हम इसमें जा रहे हैं. इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये चीजें अभी हमारे काम की नहीं है हमारे. तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे आप ओपन करेंगे, ये एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी है, ये कुकीज हैं. तो यहाँ पे सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए आप, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, 64-bit, 32-bit. तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप ये डाउनलोड कर दीजिए. और यहाँ पे क्लियर लिखा है पाइथन 3.8. तो आपको ये देखना है कि आपका पाइथन का वर्जन कौन सा आपने इंस्टॉल किया है. वो आपको स्टार्ट मेनू में से पता चल जाएगा. जैसे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट और यहाँ पे पाइथन, तो सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे आप पाइथन 3.8 इंस्टॉल करेंगे. उसका वीडियो मैंने पहले क्लास 11 के लिए बना दिया है. तो मैंने जैसे इंट्रो में कहा सेम उसी तरह से ये देखिए पाइथन आइडियली. तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आपका है, और इसी हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए. उसके बाद आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. एनाकोंडा प्रोवाइड्स एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस एनाकोंडा में इनबिल्ट आते हैं. कौन कौन से एप्लीकेशंस है देखिए. सबसे पहले CMD EXE प्रॉम्प्ट. तो CMD EXE प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये प्रॉम्प्ट होता है कमांड. जैसे आप करेंगे तो यहाँ आपने CMD देखा होगा, तो ये एक टूल है, तो जिसके जरिए हम कमांड लिख के काम कर सकते हैं. जैसे विंडोज अभी है अपने पास, तो पहले ये विंडोज नहीं था, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डॉस था. तो ये उसका स्क्रीन है. यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिख सकते हैं. तो कुछ कमांड रिलेटेड वर्क होगा अगर, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्होंने ये दिया है. सेकंड जो है वो है डेटा लोर. तो ये डेटा लोर जो है ये सारे हम अभी यूज नहीं करेंगे, डेटा साइंस के लिए यूज होता है जनरली. IBM वाटसन स्टूडियो क्लाउड, जुपाइटर लैब, उसके बाद जो है जुपाइटर नोटबुक आपका आएगा, पावर शेल प्रॉम्प्ट, QT कंसोल, स्पाइडर, ग्लूवीज, ऑरेंज 3, पाइचाम प्रोफेशनल एंड आर स्टूडियो. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सारे एप्लीकेशन आप यूज कर पाएंगे, बट हम इसमें से सिर्फ इस्तेमाल करेंगे जुपाइटर नोटबुक. दिस ऑल एप्लीकेशंस रन ऑन बेस रूट. It is suggested that you have to use Jupyter Notebook for
द पाइथन इंट्रोडक्शन पार्ट इन क्लास 9 एंड एडवांस पाइथन इन क्लास 10। तो ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए मैं इससे अभी स्टार्ट कर रहा हूं। आपको जो आईडीएलए के प्रोग्राम चाहिए तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे क्लास 11th के जो पाइथन बिगिनर के ट्यूटोरियल वीडियोज है उसमें जाइए आप, आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे और उसमें मैं अपडेट भी करता रहता हूं। जैसे जैसे प्रोग्राम का मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं वहां पर नए नए वीडियोस डालता हूं। तो वहां पर जाकर के आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि कैसे प्रोग्राम करता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली कवर की है। तो उसमें आपको मिल जाएगा आईडीएलई से। यहाँ पे जुपाइटर नोटबुक से हम स्टार्ट करेंगे और वो भी नए सिरे से स्टार्ट करने वाला है। तो आप लाइक कर दीजिए इस बात पे, इस वीडियो को। और यहाँ पे मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि कैसे हम जुपाइटर नोटबुक में काम करेंगे और कैसे सारे प्रोग्राम्स करेंगे। अगर कोई दिक्कत आता है आपको तो आप आईडीएलई यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा और जुपाइटर हर कंप्यूटर में चलाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ताकि मैंने मेरे कंप्यूटर लैब में भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, कुछ एरर्स आते हैं तो बहुत ही दिक्कतें हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में वर्क नहीं करता है तो आप इसको आईडीएलई पे ले जाइए और आईडीएलई पे कर दीजिए। आईडीएलई भी अलाउड है, लेकिन हम जुपाइटर नोटबुक इसलिए करते हैं कि क्लास 10 में जो कुछ कोड है वो यहाँ पे इजीली हम कर पाए, इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इंट्रोडक्शन टू जुपाइटर नोटबुक। The Jupyter Notebook is an integrated web application in Anaconda distribution. It allows to create and share the live documents that contain live code, equations, etc. If it is not integrated in your Anaconda installations, you can find the installation guide by following this link. तो यहाँ पे मैंने इसका लिंक भी दिया है कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर दिया लेकिन वहां पे आपको जुपाइटर नोटबुक नहीं मिला तो आप इस इंस्टॉल गाइड से इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और इसका मेन वर्क क्या है जुपाइटर नोटबुक का, ये देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, इट अलाउज टू क्रिएट एंड शेयर लाइव डॉक्यूमेंट। तो आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कर पाएंगे और कोड भी कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। मैं जब इसको रन करूंगा आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है कि आपको अगर कुछ नोट्स भी लिखना है तो कमेंट नहीं बल्कि ऐसे जो पीडीएफ मैंने बनाया है उसी प्रकार से वहां पे नोट्स बनते हैं। इसीलिए इसका नाम नोटबुक दिया गया है कि जिसमें आप कोड भी कर पाए और उसके साथ उसके नोट्स भी लिख पाएंगे। और वो लाइव कोड होता है, वो HTML फॉर्म में होता है, जैसे सर्वर पे चलता है लोकल होस्ट पे, तो वहां पे HTML कोड में होता है वो, तो ब्राउजर। तो इसीलिए ये इसका एक बेनिफिट है, फिर आपको सेव करके आप उसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जुपाइटर नोटबुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जुपाइटर नोटबुक इज एन इनक्रेडिबली पावरफुल टूल फॉर इंटरेक्टिवली डेवलपिंग एंड प्रेजेंटिंग AI related projects. The Jupyter project is the successor to the earlier IPython notebook, which was first published as a prototype in 2010. Although it is possible to use many different programming languages within Jupyter notebooks, Python remains the most commonly used language for it. तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या है जुपाइटर नोटबुक। तो एक टूल है जिससे आप इंटरेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। और ये IPython जो पहले था उसी का एक हम सक्सेसर बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये 2010 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था IPython के अंदर। उसके बाद इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो है पाइथन लैंग्वेज। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो हाउ टू एक्सेस जुपाइटर नोटबुक। सो देयर आर टू वेज, वन इज एनाकोंडा नेविगेटर, सेकंड इज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो हियर आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज एनाकोंडा नेविगेटर। ये सिंपल है। दिस इज अ GUI बेस्ड एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लॉन्च जुपाइटर नोटबुक। फॉलो दिस स्टेप्स। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेप्स लिख दिए हैं, वही स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। यहाँ स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आएगा, देखिए यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, उसके बाद जाता है एनाकोंडा 3 और यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद कुछ ओपन होगा, वो एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसकी साइज भी ज्यादा है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इंटीग्रेटेड है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। और ये वाला आइकन आता है मतलब ये ओपन होने की प्रिपरेशन में है। ये एनाकोंडा टाइप देखते हैं आप, ग्रीन एनाकोंडा जैसे हम बोल सकते हैं। ये मुंह है और ये टेल वाला पार्ट है इसका, देखिए। तो इसी प्रकार से होता है ये। तो अब ये थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन होगा, तब तक हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से जैसे ओपन करेंगे आप तो आपको ऐसा स्क्रीन
मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद हम जाएंगे जुपाइटर नोटबुक में। ये सारे एप्लीकेशन जो मैंने ऊपर बताए वो है यहाँ पे। आप इसे भी लॉन्च कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में आता है तो, बट आपको समझ में नहीं आएगा, हम भी इसमें से बहुत सारे टूल यूज नहीं करते हैं। ये आप स्पाइडर कर सकते हैं, स्पाइडर में भी पाइथन प्रोग्राम कर सकते हैं आप प्रोग्रामिंग। ये पाई क्यूटी जो है वो पाई क्यूटी करके एक आता है जीओ एप्लीकेशन, वो भी आप कर सकते हैं। पावर सेल है, पावर सेल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही हम उसमें कुछ कर पाएंगे। तो ये जुपाइटर नोटबुक कैसे आया जाएगा हम ओपन करेंगे अभी, तब तक आगे देखते हैं। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया था कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा, तो इसीलिए हमें ये देखना है। टू लॉन्च जुपाइटर नोटबुक यूजिंग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, it is a little bit different process than launching Jupyter Notebook through Anaconda Navigator. Anaconda prompt allows to launch Jupyter Notebook through the kernel, and IPython is the default kernel for Jupyter Notebook. So this kernel is required to be installed inside the virtual environment. तो जहां पर भी prompt होता है वो prompt ऐसा होता है कि एक कमांड का विंडो होता है, तो उसमें क्या हमें कहीं ना कहीं एक कर्नल की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए भी आपको IPython का जो डिफॉल्ट कर्नल है वो जुपाइटर नोटबुक के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये क्या है वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो यहां देख लेते हैं। अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल हो गया, ओके। अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल दैट हेल्प्स टू कीप डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट सेपरेटेड by creating isolated Python virtual environments for them. This is one of the most important tool that most of the Python developers use. तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये एक टूल है जो हमें प्रोग्राम की डिपेंडेंसीज मतलब क्या, जब हम प्रोग्राम में कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, तो वो किसी और टूल पे या तो किसी पैकेज पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए सेपरेटली, तो उसके लिए हमें पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करना पड़ेगा। तो जो मेन बेस एनवायरनमेंट है इसे यूज नहीं करेगा वो, और हम जो क्रिएट करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट इसी को यूज करेगा और वहीं से सारी लाइब्रेरीज लोड करेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, इसीलिए सभी पाइथन डेवलपर्स इसको यूज करते हैं। आगे चलिए देखते हैं इसमें। मोस्टली इट इज यूज टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट बिटवीन मल्टीपल एनवायरनमेंट्स ऑफ द सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अभी मैंने जैसे बताया, तो इसके दोनों में कंफ्लिक्ट ना हो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। A developer might need to work on Python 3.7 and Python 3.8 both. Now in this case, a developer has to create a virtual environment, so it will not affect the base environment and its dependencies. When a virtual environment is created, it will isolate the dependencies from the base environment. इसका मतलब ये है कि जब हम काम करेंगे अलग अलग वर्जन पे और आपको यूज करना है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। देखिए इसमें क्या होता है कि नए वर्जन में कुछ चीजें वर्क नहीं करती, या तो कुछ एप्लीकेशन आपने अगर पुराने वर्जन से बनाई है तो वो कोड नए वर्जन में उतना अच्छा नहीं चलता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए दोनों में अगर वर्क करना है तो ये वाला आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए डेटा साइंस में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। When a virtual environment is created, it will isolate the dependencies from the base environment. How to create a virtual environment with Anaconda distribution? देखिए यहाँ पे Anaconda ओपन हो गया है और ये देखिए सारे ऐप आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है जुपाइटर नोटबुक पे, यह है लॉन्च, यहाँ क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर बाद यहाँ ब्राउजर खुलेगा और ब्राउजर में जुपाइटर नोटबुक हम ओपन कर देंगे। तो ये है एनाकोंडा नेविगेटर से हमने इसको ओपन किया। अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए भी सेम उसी जगह जाना है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कुछ, और ये आपका जुपाइटर नोटबुक का स्क्रीन है। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि कैसे इसको यूज करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अभी इतना इस वीडियो में रखते हैं। हम जुपाइटर नोटबुक वाला और वर्चुअल एनवायरनमेंट देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। मैं आपको कमांड्स दिखा देता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जुपाइटर नोटबुक, और हमें जब भी काम करना है हम यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे। यहाँ आपको न्यू फाइल पाइथन 3 दिख रहा है वो लेंगे। टेक्स्ट फाइल चाहिए तो टेक्स्ट फाइल, फोल्डर बनाना है, टर्मिनल करना है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो वो देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए अभी इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको वो स्क्रीन मिल जाएगा कमांड वाला।
ये देखिए यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट आप कैसे करेंगे, ये पूरा मैंने यहाँ पे प्रोसेस करके ऑलरेडी दिखा दिया है और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया है। ऐसा नहीं है कि भाई बिना किए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने खुद किया हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो ओपन हो जाएगा। पहले आपको टाइप करना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, या तो फिर स्टार्ट प्रोग्राम में जाकर के भी आप कर सकते हैं। अब जैसे ही रन होगा आपको ऐसे मिलेगा, बेस लिख के आएगा और उसके बाद आपका जो यूजर नेम होगा वो आएगा। जैसे मेरा यहाँ पे TutorialAICSIP है, तो यही यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये बेस यहाँ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं आता है तो ये समझ लीजिए कि कुछ दिक्कत है आपके एनाकोंडा इंस्टॉलेशन में या तो पाइथन इंस्टॉलेशन में। इसके बाद स्टेप 3 क्या रहेगा, आप जैसे ही यहाँ आते हैं आपको ये कमांड टाइप करना है, कोंडा क्रिएट -n env पाइथन = 3.8। आपके कंप्यूटर में जो पाइथन है वही वर्जन आप यहाँ डालिए, उसको चेक कर लीजिए स्टार्ट मेनू में जाकर के। उसके बाद आप ये कमांड लिखेंगे और जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। प्रोसेस स्टार्ट करते टाइम इंटरनेट का ऑन होना जरूरी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये पैकेजेस डाउनलोड नहीं होंगे। ये सारे पैकेजेस यहाँ पे डाउनलोड होते हैं, तो इसलिए इंटरनेट रनिंग होना चाहिए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ कुछ लिस्ट आ जाएगी और जो जो इंस्टॉल किया है उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी। उसके बाद इट विल आस्क टू प्रोसेस y/n, फिर आपको बोलेगा कि भाई आपको इसे प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है आगे, तो आप यहाँ यस कर दीजिए तो प्रोसेस हो जाएगा। एंड इट विल डाउनलोड सम रिक्वायर्ड पैकेजेस, देन आस्क टू एक्टिवेट द वर्चुअल एनवायरनमेंट, टाइप द कमांड कोंडा एक्टिवेट env, ऑब्जर्व द बिलो गिवन स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे ये जैसे डाउनलोड हो गया है तो सारे पैकेजेस जो थे वो सारे डाउनलोड हो गए। इसके बाद यहाँ ऐसे पूछेगा टू एक्टिवेट दिस एनवायरनमेंट यूज कोंडा एक्टिव env, तो आपको ऐसे लिख देना है कोंडा एक्टिव env। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आपको ऐसा बेस की जगह env वाला ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट द बेस वर्ड विल बी रिप्लेस बाय env, ऑब्जर्व दिस स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे देखिए env आ गया, यहाँ बेस आ रहा था पहले। तो जैसे कोंडा एक्टिवेट env करेंगे ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको इसे हैंडल करना है। उसके बाद जो है कुछ जुपाइटर नोटबुक की डिपेंडेंसीज है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका कमांड यहाँ पे हाईलाइटेड है, कोंडा इंस्टॉल ipykernel nb_conda जुपाइटर। तो आप ये जैसे करेंगे ऑटोमेटिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा और सारे यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कोई कंटेंट अगर मिस कर गए हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दिया है मेरे ब्लॉग का, तो सारे कंटेंट आपको इस पेज पे मिल जाएंगे क्लास 9th के लिए। तो जाइए उधर, पहले हम क्लास 9th का कवर कर लेंगे बेसिक पार्ट, उसके बाद हम जाएंगे क्लास 10th में, जो हालांकि क्लास 10th में भी ये बेसिक आ रहा है तो वहां पर भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक का जो अकाउंट है उसको पेज को लाइक करिए, फेसबुक पेज को। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी फॉलो करिए, तो वहां पर भी आपको कंटेंट रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।